محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 بوڑھا زانی، 2 گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغلی کرنے والا، چغل خور، جھوٹا گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخے پر۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی والدہ محترمہ ہیرا بین کا مختصر سی علالت کے بعد سانحہ ارتحال آخری رسومات پی ایم مودی نے دی انجام۔ سی ایم کے سی آر ریاستی عہدے ویملا پرشانت ریڈی و پی او سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی و ایم پی الوین نے کیا اظہار تعزیت۔ ایپا سوامی پر غیر اخلاقی جملوں کا استعمال کرتے ہوئے عقیدت مندوں کا دل دکھانے والے بحری نرش کے خلاف متحدہ ضلع میں بڑے پیمانے پر ہندو بھائیوں کی جانب سے احتجاج درج و ضلع پولیس کمشنر و کلکٹر کو دی گئی یادداشت۔ نئے سال کو اپنے افراد خاندان کے ساتھ منائے، محکمہ پولیس کی ہدایتوں پر عمل کرے، سی پی کیا ناگراج۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی والدہ کے سانحہ ارتحال پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ ٹویٹ کرتے ہوئے دیا پرسہ و کیا اظہار تعزیت۔ محکمہ پولیس کی پھرتی کے سبب چوروں کا گروپ آیا حراست میں، زیورات و رقم کی گئی ضبط، اے سی پی وینکٹیشورلو۔ شادی مبارک و کلیانہ لکشمی اسکیم کی پورے ملک میں نظیر نہیں، ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین باجوٹی گوردھن، انہوں نے استفادہ کنندگان میں چیکس کی تقسیم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی والدہ ہیرا بین کا مختصر سی علالت کے بعد ہاسپٹل میں سانحہ ارتحال پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین صدر اسد الدین اویسی نے دیا پرسہ۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی والدہ محترمہ ہیرا بین جو احمد آباد کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، گزشتہ شب ہاسپٹل میں ہی انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ ہیرا بین نے حال ہی میں اپنا 100واں یوم پیدائش منایا تھا اور ان کے اس سانحہ ارتحال پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے ٹویٹر پر علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ نریندر مودی و ان کے افراد خاندان کو پرسہ دیا اور اظہار تعزیت پیش کی۔ گورنمنٹ جونیئر کالج گرلز نرمل میں بیت بازی مقابلہ، النور کے مقابل اسلامیہ ٹیم نے فائنل راؤنڈ میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ نرمل میں اردو میڈیم، سائنس و آرٹس انٹرمیڈیٹ سال اول و دوم کی 10 ٹیموں نے بیت بازی مقابلے میں حصہ لیا۔ فائنل بیت بازی کا مقابلہ گورنمنٹ جونیئر کالج گرلز کے آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا۔ النور ٹیم کی قیادت ہدا نشہ سائنس گروپ انٹرمیڈیٹ سال دوم اور اسلامیہ ٹیم کی قیادت ثقیبہ عرفین آرٹس گروپ سال دوم نے کی۔ النور 5 ارکان کی ٹیم پر مشتمل تھی اور اسلامیہ ٹیم کے بھی 5 ارکان تھے۔ بیت بازی مقابلے کا افتتاح سی ایچ گنگادھر پرنسپل نے کیا۔ محمد منہاج الحق لیکچرر اردو نے اردو کے فروغ کے ضمن میں پروگرام کو آرگنائز کیا اور شیخ
परवेज आलम लेक्चरर कीमियाई बैतबाजी मुकाबले को बेहतर अंदाज में बहुसन खूबी से अंजाम दिया। फाइनल राउंड में अव्वल दर्जे कामयाबी और दूसरे नंबर पर इनाम दुवम की हैसियत से प्रिंसिपल ने कामयाबी का ऐलान किया और दो टीमों को मुबारकबाद देते हुए इस किस्म के प्रोग्राम में तलबा की शिरकत को बेहतर करार देते हुए नेक तौक़ात का इजहार किया और आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम की सलाह दी। बैतबाजी में शानदार मुजाहरा करने पर उर्दू मीडियम स्टाफ ने उर्दू मीडियम तलबा की हिम्मत अफजाई करते हुए इनामात की तकसीम का ऐलान किया और तमाम लेक्चरर्स और कॉलेज इंतजामिया ने तलबात की हिम्मत अफजाई करते हुए मुबारकबाद पेश की। कोई जन्नत का तालिब है कोई गम से परेशान, कोई जन्नत का तालिब है कोई गम से परेशान, ज़रूरत सजदा करवाती है इबादत कौन करता है। जरूर करेंगे ख़ै से। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी इनके ज़बरदस्त होते हैं। बहुत अच्छा शेर। टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। उम्मीद यही थी कि फ़ाइनल में जो टीमें आ रही है ऐसे ही जो है ना कंपटीशन रहेंगे। बहुत अच्छा मुकाबला। आखिरी राउंड। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी में शादी मुबारक चेकों की मोपाल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 25 मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने मोपाल मंडल के रायतु वेदिका भवन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मोपाल मंडल के मोदकपल्ली, बोरगम, हाटसी, मोपाल, कंजर मंचिप्पा, नरसिंहपल्ली, नियालकल, कुलासपुर, सिरपुर, कलपुल, एलमागुंटा, अमराबाद, बैरापुर, चिन्नापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 25 मुस्तहिक़ीन को मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि गरीब व माली एतबार से कमजोर अफराद खानदान में मौजूद लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम की शुरुआत करते हुए हर एक मुस्तहिक़ लड़की को 1,116 रुपए देने का फैसला करने के बाद आज कई मुस्तहिक़ीन लड़कियों के अफराद खानदान इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहले इस स्कीम के तहत 51,000 रुपए दिए जाते थे, इसके बाद 75,000 रुपए दिए जाने लगे, लेकिन ये रकम भी नाकाफी महसूस की जाने लगी। तब रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम की रकम इजाफा करते हुए आज हर एक मुस्तहिक़ लड़की शादी के लिए 1,116 रुपए दिए जा रहे हैं। किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीमात में वजीफा, पैराना साली वजीफा, जिस्मानी माजूरीन, वजीफा तना खवातीन, माइनॉरिटीज, तलबा तालिबात के लिए इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम, आला तालीम के लिए दीगर ममालिक को जाने वाले तलबा को 20 लाख रुपए की इजराई और शादी मुबारक स्कीम जो कि मुल्क की सतह पर काफी मकबूलियत हासिल करने के बाद मुल्क के दीगर रियासतें इन स्कीमात की तलखीद करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से सीएम केसीआर गरीब अवाम के मसाइल की यकसूई के लिए आज़ा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवाओं और तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन के अलावा एड्स और फिलिपिया से मुतासर अफराद को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को हर माहाना 3,116 रुपए जबकि दीगर इस्तिफादा कुनिंदगान को माहाना 2,116 रुपए वजीफा दिया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर जो कि गरीबों और बेयार मददगार के मसीहा माने जाते हैं, इसीलिए इनके दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई व तरक्याती स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएम केसीआर की जानिब से शुरू की गई कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों के लिए एक तोहफे में तब्दील होने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर व आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। प्रोग्राम में मंडल ZPTC श्रीमती कमला नरेश, वाइस MPP कविता, मंडल TRS पार्टी सदर M श्रीनिवास, रायतु बंधु सदर श्रीनिवास गौड, DCCB डायरेक्टर PSCS सोसाइटी चेयरमैन चंद्रशेखर रेड्डी, DCCB डायरेक्टर लिंगम, मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत के सरपंच MPTC मौजूदे के TRS पार्टी सदर कारकुनान कायदीन के अलावा मुस्तहिक़ीन ने शिरकत की। ఒక వ్యక్తికి సంవత్సరానికి ఖర్చు పడే వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారు దేశంలో అంటే కేవలం కేసీఆర్ గారు. ఆయన భార్య పిల్లలు ఉన్నారు, సంసారం ఉన్నది. సంసారం ఎట్లా బాగా తెలుసు కేసీఆర్. సంసారం లేనివాడు మోడీ అది పెళ్ళ మీద పిల్లలు లేని सीनियर सिटीजन फोरम सुभाष नगर निजामाबाद के ज़िले निगरानी में मंचिप्पा के ज़िले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को नोटबुक्स के अलावा खेलों की दरकार चीज़ों की फ़राहमी अमल में लाई गई।
منچپا کے ضلع پریشد ہائی اسکول میں سینئر سٹیزن فورم سبھاش نگر نظام آباد کے زیر نگرانی میں طلباء کو نوٹ بکس کے علاوہ کھیلوں کے لیے درکار چیزوں کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی طلباء کو نوٹ بکس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے لیے ضروری چیزوں کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلباء تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی دلچسپی لے کر اپنی صلاحیتوں و قابلیت کا لوہا منواتے ہوئے ریاست کا نام اور ہمارے علاقے کا نام روشن کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں اسکول صدر مدرس اساتذہ صاحبین سینئر سٹیزن فورم ممبران کے علاوہ نائب سرپنچ کے ساتھ ساتھ معظم مقیم عوام نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر وملا پروشان ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور ہونے والے رائتو بیمہ چیکوں کی مستحقین کے افراد خاندان کو کیا گیا حوالے۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر ایم پی لاونیا لنگا گوڈ و منڈل ٹیارس پارٹی صدر بدم پروین ریڈی نے ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پروشان ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور ہونے والے رائتو بیمہ چیکوں کی مستحقین کے افراد خاندان کو حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بالکنڈہ منڈل کے جلال پور دیہات سے تعلق رکھنے والے کٹی راجنا کٹی گنگارام نامی دونوں کسان گزشتہ ناساز صحت کے باعث فوت ہونے کی وجہ سے ریاستی وزیر وملا پروشان ریڈی کے احکامات کے مطابق متوفی کسانوں کے افراد خاندان کو 5 لاکھ روپے حادثاتی بیمہ سے متعلقہ پروسیڈنگ کاپی کو مستحق کے افراد خاندان کو حوالے کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ KCR حکومت میں تمام شعبہ جات کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، چونکہ KCR جو خود ایک کسان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کسانوں کے دکھ درد سے بہتر طور پر واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسانوں کی مالی مدد کے لیے رائتو بندھو اسکیم متعارف کی گئی ہے، جس کے سارے ملک میں کہیں بھی نظر نہیں ملی۔ رائتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو کاشتکاری کے لیے فی ایکڑ اراضی پر سالانہ 10,000 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ TRS حکومت کے عملی اقدامات کے باعث کسانوں کے چہروں پر خوشی و مسرت ہے۔ زرعی شعبے بے مثال ترقی کی سمت رواں دوا ہے۔ چاول کی پیداوار میں ریاست تلنگانہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کے چاول کی ساری دنیا میں کافی مانگ ہے۔ دوسری طرف KCR نے کسانوں کے لیے اپنی نوعیت کی منفرد اسکیم رائتو بیمہ کا بھی آغاز کیا ہے۔ رائتو بیمہ اسکیم کے تحت متوفی کسانوں کی ورثہ کو 5 لاکھ روپے مالی امداد دی جا رہی ہے۔ بیمہ کا پریمیم بھی ریاستی حکومت کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہے۔ KCR کی فلاح اسکیمات کے ہر کوئی متعارف ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر متوفی کسانوں کے افراد خاندان نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR ریاستی وزیر وملا پروشان ریڈی کا دل کی گہرائی سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں سوسائٹی وائس چیئرمین ویمپلی پیدا راجیشور، جکا راجیشور، حلقہ سامانوی کمیٹی ممبران ٹی گنگادھر، موضوع کے صدر ساگر یادو، جی پردیپ، ویلپور مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر ویمپلی چنا راجیشور، سید مجال الدین، سوسائٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر پرساد گوڈ، AEO کرشنا وینی، دہی کمیٹی صدر پی اشوک، ممبران جی نریش، کسانوں کے علاوہ مقامی عوام نے شرکت کی۔ ZP چیئرمین وٹھل راؤ نے ZP دفتر میں ریاستی PRTU و ضلع کیلنڈر کی رسمی اجرائی عمل میں لائی۔ ضلع پریشد چیئرمین وٹھل راؤ نے ZP دفتر میں ریاستی PRTU و ضلع کیلنڈر کی نقاب کشائی عمل میں لانے سے قبل تمام اساتذہ صاحبین کو سال نو کی پرخلوص مبارکباد پیش کی اور کہا کہ تمام اساتذہ صاحبین وقت کی پابندی کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے گورنمنٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کی خواہش کی۔ ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకు వాళ్ళకట్లా మీరు ఇటు చదువుతోని అటు క్రీడలో కూడా ముందుస్తారని వాళ్ళందరినీ భావి భారత పౌరులు దాంట్లో కూడా చాలా మంది ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఉద్యమ లెక్కనే వేరు ఉంటుంది, వేరే డాష్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మంచిది కాబట్టి మరి మరొకసారి మీ అందరికీ కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను। نئی قومی تعلیمی پالیسی کا خاتمہ کر متبادل تعلیمی نظام کو تشکیل دینے کا استعفائی قائدین نے کیا مطالبہ۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا نظام آباد ضلع کمیٹی کے زیر اہتمام ضلع صدر راجہ کنڈا وگنیش نے آج مقامی ضلعی دفتر پر SFI کا 53واں پرچم کی رسمی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح سے اس موقع پر سابقہ SFI ضلع سیکرٹری رمیش بابو نرسملو و پیدی سوری نے شہید بھگت سنگھ، ساوتری بائی پھلے و جیوتی با پھلے کو بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر SFI ضلعی صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی نئی قومی تعلیمی پالیسی کا خاتمہ کرنے کے لیے ملکی سطح پر احتجاجی دھرنا منعقد کرنے والی واحد طلبہ تنظیم ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ایدیا ضلع صدر سجاتا کے راملو، SFI سٹی صدر و سیکرٹری وشال مہیش، ضلع کے قائدین و دیگر نے شرکت کی۔
53వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు ఇవాళ ఎస్ఎఫ్ఐ నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా విద్య కోసం, వైద్యం కోసం ఎస్ఎఫ్ఐ 53 సంవత్సరాలు నిరంతరంగా పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి. साल 9 की तकारीब के तहत पुलिस मुलाजमीन की जानिब से जारी की गई हिदायत पर यकीनी तौर पर अमलावरी करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया ऐलान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कियाना गराजू ने जश्न नए साल के मौके पर सड़कों पर मेनोशी करने, सड़कों पर तेज रफ्तारी से गाड़ियां चलाने और हंगामा आराई करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया और कहा कि निजामाबाद जिले में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए ट्रैफिक कानून का सख्ती से अमल किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर नगराजू ने सहाफती एलामिया जारी करते हुए कहा कि जश्न 9 साल के मौके पर हुकूमत ने कई तहदीदात आयद की है, जिसके तहत अवाम जश्न साल 9 मनाने नाम पर हरासा किया जाना, आतिशबाजी करने, आर्केस्ट्रा साउंड सिस्टम, डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। इन्होंने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में निजामाबाद बोधन आर्मो डिवीजनों में वाक़ तमाम पुलिस स्टेशनों में बिलखुसूस नए साल मनाने की तकरीब ज़ायद इनेकाद के इम्कानात है। हर कोई गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक रूल पर अमल करे। इन्होंने कहा कि निजामाबाद पुलिस ट्रैफिक कवानीन को रूबे अमल में लाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। अहम जनकश्मर ड्रिंक एंड ड्राइव पर नजर रखने के लिए सड़कों पर पुलिस गश्त करेगी। हर एक पुलिस स्टेशन के हुदूद में शाम से पुलिस गश्ती दस्ते मुतहरिक रहेंगे। पुलिस मुलाजमिन ने कहा कि मेनोशी करते हुए फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस की जानिब से आयद किए गए कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इन्होंने अवाम उन्नास से कहा कि अपने हुदूद में रहते हुए जश्न 9 साल मनाए। 48 అవర్స్ తర్వాత మనకు నూతన సంవత్సరం రాబోతుంది కాబట్టి అందరికీ నా యొక్క హార్దిక శుభాకాంక్షలు. నూతన సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని ఏదైతే మీరు ఈవెంట్స్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో చేసుకునేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎదుటి వ్యక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా మీ ఈవెంట్స్ మీరు ఏవైతే పార్టీస్ చేసుకున్నా కూడా వాటిని చేసుకోవాలి తప్ప ఇంకో డీజేలు కానివ్వండి లేక అలాంటి వాటికి ఎలాంటి పర్మిషన్ లేదు. ప్రస్తుతం కరోనా బెల్స్ మోగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు తప్పనిసరిగా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని సిపి నాగరాజు సూచించారు. वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बेन की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बेन की आखिरी रसूमात गांधीनगर के सेक्टर शमशान घाट में अंजाम दी गई, जिसमें वज़ीर आज़म हिंद मोदी के अफराद खानदान के अलावा गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत करते हुए खराज अक़ीदत पेश की। अयप्पा सेवा समिति की अक़ीदतमंदों की ज़ेर निगरानी में हिंदू भगवानों पर नामुनासिब तबसरा करने वाले बैरी नरेश के खिलाफ बासर में एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। हिंदू भगवानों पर बैरी नरेश की जानिब से नामुनासिब तबसरा करने पर अयप्पा सेवा समिति के अक़ीदतमंदों ने बासर में एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस प्रोग्राम में अयप्पा सेवा समिति के अक़ीदतमंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। వాడు రాజకీయం చేయాలనుకుంటున్నా ఒక హిందువుని మాట్లాడాలంటే ముస్లింకి ధైర్యం లేదు, ధైర్యం లేనట్టు వీటికి ఎందుకు వచ్చింది అరెస్ట్ చేసి వాడిని ఒక్కలు దొయ్యాలని అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలు మేము అందరం కూడా పేరు పేరులో అయ్యప్ప స్వామిలో మేము వేడుకుంటున్నాము. మేము ఇమీడియట్ అయినా అరెస్ట్ చేసి లోపల దొయ్యాలని. निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के हाथे में होने वाले सरखे में मुलविस तारिक को तहवील में लेने का एसीपी वेंकटेश्वरलू का सहाफती बयान। शहर के एसीपी दफ्तर में एसीपी वेंकटेश्वरलू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद रूरल पीएस के अहाते में एएसआई परमेश्वर के ज़ेर निगरानी में हासिल की गई शिकायत के मुताबिक बी नागराजू को तहवील में लेने का इजहार करते हुए कहा कि सी सत्यनारायण नामी शख्स गुज़िश्ता माह के महीने में अयप्पा माला पहनकर इनके देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बी नागराजू शेखर वो राजू की जानिब से अयप्पा माला पहनने के बायस इन्हें अपने साथ में रख लेते हुए, लेकिन कुछ दिन बाद सत्यनारायण ने अयप्पा माला निकाल कर 28 दिसंबर 2022 को अलमारी में महफूज रखे गए 8.5 तोले सोने के जेवरात और 1 लाख नकद रकम नामालूम अफराद की जानिब से सरखा करने के ताल्लुक से दी गई शिकायत के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने तहक़ीक़ात करते हुए 30 दिसंबर 2022 को सुबह के अवलिन सातों में मुजरिम की शिनाख्त करते हुए तहवील में लेकर रिमांड पर मुंतकिल करने का इजहार किया। वो मुद्दाయిని తెలంగాణ చౌరస్తాలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ బచ్చల నాగరాజు అనేటు పాత నేరస్తుడు. ఈయనని విచారించగా ఈయన
గత 28/12/2022 రోజున గూపన్పల్లిలో జరిగినటువంటి డే బ్రేక్ అంటే పట్టపగలు ఇంట్లో అల్మారా తాళం తీసి దొంగతనం చేసినటువంటి వస్తువులు దొంగతనం చేసినట్టుగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆయనను విచారించి ఆ దొంగలించిన సొత్తుని దాచిన ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే ఆయన ఇంటి దగ్గరనే అటుకుపైన దాచినట్టుగా చెప్తే మా రూరల్ పోలీస్ పరమేశ్వర్ మరియు ఆయన టీం, అదేవిధంగా మా ఏఎస్ఐ, తర్వాత మా రూరల్ సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రాపర్గా ఇంటర్గేషన్ చేసి ఇంకేమైనా నేరాలు ఉన్నాయని చెప్పి ప్రాపర్గా ఇంటర్గేషన్ చేసి దొంగ సొత్తుని పరమేశ్వర్ ఏఎస్ఐ గారు స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. अखामती स्कूलों की 581 जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने अखामती स्कूलों में मखलूआ 581 जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया जारी किया है। हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 1 और 2, मेट्रन ग्रेड 1 और 2, वार्डन ग्रेड 1 और लेडी सुपरिंटेंडेंट्स की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, जिन ओहदों को निफाई किया गया। इन 228 हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 2 मर्द एससी डेवलपमेंट के तहत है, जबकि 140 हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर्स ग्रेड 2 बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट और 106 हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 2 महकमे कबायली बहबूद के तहत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल का 6 जनवरी से आगाज होगा, जबकि 27 जनवरी शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें दाखिल की जाएगी। दरख्वास्त के अदखाल और दीगर तफसीलात के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से इस्तिफादा कर सकते हैं। जिले की सरकारी हॉस्पिटल में आज से मोटरसाइकिल गाड़ियों पर टोकन सिस्टम की अमलावरी करने का गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिम राज ने K6 चैनल से किया खिताब। जिले के सरकारी हॉस्पिटल में हर आए दिन मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने के बायस GGH मुलाजमीन से मुताल्लिका मोटरसाइकिल गाड़ियों को पार्क करने का मसला दरपेश हो रहा है और इसके अलावा हॉस्पिटल के करीब में वाक़ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मशहूर मारुफ शोरूम के अलावा ताजिन की जानिब से हॉस्पिटल के अहाते में मोटरसाइकिल गाड़ियों को पार्क करने से पेश आने वाली दिक्कत को हल करने के ताल्लुक से जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिम राज, कलेक्टर नारायण रेड्डी, CP के नागराजू के इल्म में लाने की वजह से बैरिकेड का क़याम अमल में लाने के अलावा मुतारफ किए गए टोकन सिस्टम को बताने पर ही मोटरसाइकिल गाड़ियों को बाहर जाने की इजाज़त देने का इजहार किया। కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు వెహికల్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. అండ్ హాస్పిటల్ అనేది మనకి బస్ స్టాండ్ పక్కన ఉండడము, షాపింగ్ ఏరియాస్ పక్కన ఉండడం వలన కొంతమంది షాపింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళు, బస్ స్టాప్కి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ వెహికల్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టేసుకోవడం, మేము క్వశ్చన్ చేస్తే మేము హాస్పిటల్కి వచ్చాము అని చెప్పి వాగ్వివాదానికి దిగడము అలా చేస్తున్నారు. సో దానికోసమని మేము ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేసాం. ఇంతవరకు వారికి అంటే మంచిగా చెప్పి అర్థం చేపించడానికి చాలా ట్రై చేశాము, కానీ అలా చేసినా కానీ వినట్లేదు. అందుకోసమని కొన్ని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. अयप्पा स्वामियों के ताल्लुक से नामुनासिब तबसरा करने वाले बैरी नरेश को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए नवीपेट मंडल के बासर कौमी शाहरों पर रास्ता रोको एहतजाज। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ बासर के कौमी शाहराओं पर अयप्पा स्वामियों हिंदू बिरादरी की जानिब से मुनाकिदा एहतजाजी धरने के बाइस आमद तरफ में रुकावट आने के अलावा ट्रैफिक जाम हो गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अयप्पा स्वामियों के ताल्लुक से नामुनासिब तबसरे करने वाले बैरी नरेश को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। इस प्रोग्राम में अयप्पा सेवा समिति मेंबरान के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। अखिला भारतीय अयप्पा धर्म प्रचार सभा शाख निजामाबाद के जेर निगरानी दुब्बा चौरास्ते पर वाक़ महालक्ष्मी टेम्पल के करीब अयप्पा स्वामियों ने किया एहतजाजी धरना मुनाकिद। अखिला भारतीय अयप्पा धर्मा प्रचार सभा शाख निजामाबाद के जेर निगरानी दुब्बा चौरास्ते पर वाक़ महालक्ष्मी टेम्पल के पास अयप्पा स्वामियों ने एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए कहा कि हिंदू भगवानों के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने वाले बैरी नरेश को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में जिले जनरल सेक्रेटरी M मलेश, नायब सेक्रेटरी गाजुला सागर व कारकुनात मौजूद थे। అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ రాష్ట్ర శాఖ మరియు నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ తరఫు నుంచి ఈరోజు మన అయ్యప్ప యొక్క చరిత్ర గురించి వక్రీకరణ చేస్తూ అయ్యప్పను మనకు అవమానపరిచినట్టుగా మాట్లాడిన నరేష్ గారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की वालिदा मोहतरमा हीराबेन का मुख्तसर सी अदालत के बाद साने इर्तहाल आखिरी रसूमात PM मोदी ने दी अंजाम। CM KCR, रियासती उहदे वेमुला प्रशांत रेड्डी व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व MP अरविंद ने किया इजहार ताज़ियत।
अयप्पा स्वामी पर गैर अखलाकी जुमलों का इस्तेमाल करते हुए अकीदतमंदों का दिल दुखाने वाले बैरी नरेश के खिलाफ मुत्तहदा जिले में बड़े पैमाने पर हिंदू भाइयों की जानिब से एहतजाज दर्ज व जिले पुलिस कमिश्नर व कलेक्टर को दी गई याददाश्त। नए साल को अपने अपराधी खानदान के साथ मनाएं, महकमे पुलिस की हिदायतों पर अमल करें, सीपी किया नागराज। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की वालिदा के साने इर्तिहाल पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अल्लामा इकबाल के शेर के साथ ट्वीट करते हुए दिया पुरसम किया इजहार ताज़ियत। महकमे पुलिस की फुर्ती के सबब चोरों का ग्रुप आया हिरासत में, जेवरात व रकम की गई जब्त, एसीपी वेंकटेश्वर। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम की पूरे मुल्क में नजर नहीं, टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजेडी गोवर्धन, इन्होंने इस्तीफादा कुनिंगान में चेक की तकलीफ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।